Okay, before we pray, प्रार्थना करने से पहले let's just read one scripture which is in Jeremiah 23 एक वचन पढ़ें जो कि यिर्मयाह 23 अध्याय में है and verse 29. और उसका 29 वचन, Right? Jeremiah chapter 23 and verse 29. The Yeah. Lord says, "Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces?" और यिर्मयाह 23:29 में लिखा है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। Okay, so God is saying, His word is like a fire that burns, और तो परमेश्वर कह रहा है कि उसका वचन ऐसा है जो आग जलाता हो, and it's like a hammer that breaks the rock in pieces. और वो हथौड़े की तरह है जो कि पत्थर को टुकड़ों में तोड़ डालता Right? है। So both the hammer and the fire they function in different ways. और तो दोनों जो हथौड़े और आग है अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। Fire does not wait. और आग है जो कि इंतजार नहीं करती, It burns. वो जलती है The result is immediate. और उसका जो परिणाम होता है वो तुरंत दिखता है It just burns away. और वो उसे जला देती है। When it comes to a hammer, और लेकिन जब हथौड़ा की बात होती it है breaks. वो तोड़ता है। But we might have to use the hammer a few times, like लेकिन swing it a few times. हमें हो सकता है कि हथौड़े को कुछ बार उसको उसमें मारना पड़े। And so God is reminding us that His word is like both the fire and like the hammer. और तो परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि उसका जो वचन है दोनों आग और हथौड़े की तरह है। When we take the word of God और जब हम परमेश्वर का वचन लेते हैं and when we apply the word of God, और जब हम उसका वचन को लागू करते हैं, it's like a fire that burns. अब वो आग की तरह है जो जला देती है। Like sometimes we see the results immediately, और तो कई बार हम जो परिणाम है उनको तुरंत देखते हैं, and sometimes we might have to wait and use the word of God over and over again. और कई बार जो हमें इंतजार करना पड़ सकता है और परमेश्वर का वचन बार बार उसका इस्तेमाल करना पड़ We might सकता have है। to speak the word of God over and over again. परमेश्वर का वचन बार बार जो है बोलना पड़ सकता है। But it's like the hammer that breaks the hardest rock into pieces. लेकिन वो उस हथौड़े की तरह है जो कि एक मजबूत पत्थर को उसको टुकड़ों में तोड़ डालता है। Right? So, since the word of God is both like the hammer and the fire, let us not get discouraged. और क्योंकि परमेश्वर का वचन आग और हथौड़े की तरह है, हम निराश ना हो। Right? Let's not get discouraged when we don't see immediate results. आइए हम निराश ना हो कि जब हम यदि जो तुरंत परिणाम है नहीं देखते, But we can have faith and expect God's word to be like fire and see the immediate results. लेकिन विश्वास कर सकते हैं कि आग की तरह है जो उसका तुरंत परिणाम हम देख पाए। Okay? So, as we pray today, और जैसे हम आज प्रार्थना करेंगे, let's just remind ourselves of these two things. तो इन दोनों बातों के बारे में खुद को याद दिलाएं। And let's ask God's word to be like the fire in our lives. आइए परमेश्वर के वचन को पूछे हमारे जीवन में आग की तरह होने के लिए। And let us also extend our faith and say, Lord, let your word be like the hammer in my life. और हमारे विश्वास को और भी बढ़ने दो और ये कहें कि परमेश्वर आपका वचन मेरे जीवन में एक हथौड़े की तरह हो सके। Okay, so let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we come before you this afternoon, Lord. और पिता, हम इस दोपहर के समय में आपके पास आते हैं। Let your word be like the fire that burns things in our और lives. पिता, आपका वचन हमारे जीवनों में उस आग की तरह हो जो सब जला देता Let है। your word purify us. आपका वचन हमें शुद्ध करे Let your word burn away the unnecessary things. और आपका वचन पिता वो सारी चीजें जो जरूरत की नहीं है उन्हें जलाए। And yes, Lord, the things that we've been praying for and asking for, Lord, we pray that your word be like the fire. और पिता, हम प्रार्थना करते उन बातों के लिए जो हम प्रार्थना करते आए हैं और वो आपका वचन हमारे लिए एक आग की तरह होगा। And yes, Lord, we thank you that your word is like the hammer. और हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि आपका वचन हथौड़े की तरह है। Lord, even as we speak your word and declare your word, Lord, और पिता, जैसे कि हम आपके वचन को देखते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, Lord, we pray that your word will break the strongest of strongholds in our own lives. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में सबसे मजबूत गढ़ों को भी तोड़ डालेगा। Yes, Lord, let your word break down all these wrong thoughts and wrong ideas, God. और हाँ पिता, आपका वचन हमारे हर एक गलत विचार, हर एक गलत तरीका उनको तोड़े। And let your word also break down all the strongholds. और पिता, आपका वचन जो हर एक मजबूत गढ़ों को तोड़े। And Lord, we pray for breakthroughs, Lord. और पिता, हम जो छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, Let your word just usher in
breakthroughs in every area of our और lives. पिता आपका वचन इस बात को सुनिश्चित करे कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में छुटकारा होने We को। thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करते प्रभु We यीशु। commit ourselves into your mighty हम hands. खुद को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। We pray all this in your और precious name. पिता हम ये सारी प्रार्थना पिता आपके कीमती नाम में होके मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Right. Okay. Online students, just be mindful of their mic. Just please keep it muted. और तो जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, कृपया अपने माइक का ध्यान रखें कि हमेशा उसे बंद करे रखें। Okay. So, we are looking at the word of God. We are going to start with chapter 5 today. और हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं और आज जो है 5वां अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। So, yesterday we looked at some of the things that we need to avoid. और Right. कल हमने वो देखा कि कुछ ऐसी बात है जिनको हमें जो है नजरअंदाज करने की जरूरत है What is causing barriers to us और हमारे लिए क्या रुकावट बन रहा है in the context of finances. हमारा जो धन संपत्ति है उसके संदर्भ में। And so today we are going to look at what are some things that we are supposed to do. और तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या कुछ ऐसी चीजें जो हमें करने चाहिए, हमें And so करना we are है। looking at principles in God's word. और हम परमेश्वर के वचन में सिद्धांतों को देख रहे हैं। Like what are principles? और तो क्या सिद्धांत है? Right? Faith comes by hearing and hearing the word of God. विश्वास सुनने से आता है और सुना जो है मसीह के वचन से जाता Now है। that's a principle of faith, तो वो एक विश्वास का सिद्धांत है। right? Which means that the more word we take into our lives and believe, इसका that's going to मतलब produce faith. इसका मतलब जितना ज्यादा हम हमारे वचन जीवन में परमेश्वर के वचन को लेते हैं वो विश्वास को बढ़ाएगा। We see a principle of sowing and reaping. और हम जो है बोने का और काटने का सिद्धांत भी देखते हैं। That's a very practical principle. वो बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत है। Whatever we sow, that we reap. जो कुछ भी हम बोते हैं वही काटते हैं। Okay? That's the very natural principle as well. वो बहुत ही प्राकृतिक सिद्धांत भी है। Similarly, there are many principles in God's word. और उसी तरह परमेश्वर के वचन में भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। And so we as believers are supposed to know these principles and use these और principles. तो हम ऐसे विश्वासी होने के नाते हमें इन सारे सिद्धांतों को जानना है और उनके इस्तेमाल करना है। Right? So we have to be aware of these principles और तो हमें ये जो सिद्धांत है इनके बारे में जागरूक रहने की जरूरत है in order to use them. उनको इस्तेमाल करने के लिए। Right? So what are these principles with regard to money and finances? और तो धन होता है और या जो आर्थिक चीजें हैं उनके बारे में वो सिद्धांत क्या है That is what we are going to look at. और वही जो हम देखने वाले हैं। Okay? So now we cannot live our lives without using the principles of God. और हम परमेश्वर के सिद्धांतों को इस्तेमाल किए बिना हमारा जीवन नहीं जी सकते। Or in other words, if you are going to live a spiritual life और दूसरे शब्दों में यदि आप जो आत्मिक जीवन जीने जा रहे हैं and use the principles of the world, और संसार के सिद्धांतों का इस्तेमाल करें, we can't expect the same results. और तो जो समान परिणाम होते हैं हम उनकी उम्मीद नहीं कर सकते। You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे Right? हैं? So suppose we are sowing, seeds of a particular plant. और तो कल्पना करें आप किसी पौधे का जो है बीज बो रहे हैं Okay, let's say we are sowing potatoes. और जैसे बोले कि जो आलू होते हैं उनको हम बो रहे हैं, What are we reaping? और तो क्या हम काटेंगे, उसके क्या कटनी होगी? Can we reap apples? क्या हम सेब मिल सकता है उनसे? No, नहीं। right? So when it comes to the principles of God, और जब परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में बात होती है when it comes to divinely appointed success और जब ईश्वरीय द्वारा नियुक्त की गई सफलता के बारे में बात आती है or divine prosperity, और या फिर ईश्वरीय संपन्नता, we need to use the principles of God. हमें परमेश्वर के सिद्धांतों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। We can't use worldly principles and expect spiritual results. और हम जो है संसार के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आत्मिक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। And that is what we are looking at today. और वही जो हम आज देखेंगे। For example, if you look at Isaiah 55 and verses 8 to 11, उदाहरण के लिए यदि आप देखें यसाया 55 अध्याय वचन 8 से 11, right? God is actually sharing about the power of his word. और परमेश्वर जो अपने वचन की सामर्थ के बारे में बता रहा है। Okay? Verse 8 starts by saying, God saying, my thoughts are not your thoughts. और परमेश्वर 8वां वचन इस प्रकार से कहते हुए शुरू करता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं And है। he's also saying, my ways are not your ways. और वो ये भी कह रहा है कि तुम्हारी जो रास्ते हैं, तुम्हारी गति मेरी गति सी नहीं So है। he's talking about his principles. तो वो जो है उसके सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा है, He's talking about his ways. वो उसके मार्गों के बारे में बात कर So रहा he's है। saying there's a difference. तो वो कह रहा है कि इसमें अंतर है There's a difference between how the world functions and how the kingdom of God और जिस functions. प्रकार से परमेश्वर का राज्य और संसार कार्य करते हैं उन दोनों में अंतर है। Okay? And he says in verse 10,
और 10वें वचन में कहता है, He's talking about a very natural thing that happens. अब वो बहुत ही प्राकृतिक चीजों के बारे में बात कर रहा है जो होती हैं। Says rain comes down, अब कहता है कि बारिश नीचे आती है it waters the earth और वो जो पृथ्वी पे पानी देती and है causes the earth to be fertile and, bring forth and और bud. भूमि में जो है उपज को लेकर आती है। Right? In the same way, उसी तरह God is saying, my word does that. और परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वचन ऐसा करता है। Right? It's the same way as the rain comes and makes the earth fertile. और जिस तरह वर्षा आती है और फिर भूमि पे जो उपज होती है। Now, how many of you have seen, the same piece of land before and after rain? और आप में से कितने लोगों ने एक जो खेत होगा जिसको बारिश से पहले और बारिश के बाद देखा है? It's completely different, वो पूरा अलग होता है right? It's beautiful after the rain. और वो बारिश के बाद जो सुंदर होता है। What was dry and dusty and not growing, nothing growing, it looks very different जो कि when there's rain. पहला जो सूखा था उसमें कुछ नहीं उग रहा था, लेकिन बारिश के बाद है फिर वहां पे बदल जाता है, Right. बहुत सुंदर लगता There है। are plants that are growing where you thought, nothing will grow. और वहां पे जो पौधे उग रहे होते हैं जो कि पहले सोचा कि कुछ नहीं उगेगा। So God is saying, hey, my word is like that. तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वचन इस तरह का है You thought there won't be change. कि तुमने सोचा कि वहां पे कोई बदलाव नहीं होगा You thought there won't be any difference. और तुमने सोचा कि वहां पे कोई भी अंतर नहीं But होगा। just like how the rain comes and waters, my word also does that. और जैसे बारिश आती है और पृथ्वी पे जो पानी को देती है वैसे ही मेरा वचन भी करता है। Right? So his word brings freshness. और तो उसका वचन ताजगी को लेके आता है, His word brings change. उसका वचन बदलाव को लेके आता है, His word brings fruitfulness. उसका जो वचन है फलवंत वहां पे फल को लेके आता है। Because we think that, hey, nothing can happen here. और हम सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, But God's word brings a change. लेकिन परमेश्वर का वचन बदलाव लाता है। Right? So that is what God is saying. और तो वही परमेश्वर कह रहा है, My thoughts are different. मेरे विचार अलग हैं, My words, my ways are different. मेरे मार्ग मेरी गति अलग है। And just like rain comes and makes a difference, my word brings a difference. और जैसे वर्षा आती है और वहां पे बदलाव को लेकर आती है, वैसे ही मेरा वचन वहां पे बदलाव को लाता है। So if we want our life to change, तो यदि हमारे जीवन को हम चाहते हैं कि वो बदले, we just have to embrace God's word, और हमें तो है परमेश्वर के वचन को अपनाने की जरूरत है। right? Understand God's word परमेश्वर का वचन समझना है and apply God's word in our lives. और उसके वचन को हमारे जीवन में लागू करें। It could be in the area of our, our personal life. अब वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी हो सकता है। Apply God's word. परमेश्वर के वचन को लागू करें। It could be in the area of, maybe us having to experience some healing or physical change. और या वो इस क्षेत्र में भी हो सकता है कि हम चंगाई को अनुभव करना चाहते हैं। Take the principles of God and apply it. परमेश्वर के सिद्धांतों को लें और उनका इस्तेमाल करें। So also when it comes to money and finances. और तो उसी तरह जो है जब ये धन संपत्ति के बारे में ही बात होती Now, है, there are principles in God's word about money. परमेश्वर के वचन में सिद्धांत हैं धन के बारे में भी, So take it and apply it. और तो उसे ले और उसका लागू करें। Right? So this is what God says. तो वो जो ऐसा है परमेश्वर कहता है। Okay. So in Joshua chapter 1, और यहोशू 1 अध्याय में we see a very powerful principle that God instructs Joshua in. और हम यहाँ पे बहुत ही सामर्थशाली एक सिद्धांत देखते हैं जो परमेश्वर ने यहोशू को निर्देश दिए। Who was Joshua? यहोशू कौन था? He was one of the Israelites और वो एक इजरायलियों में से एक व्यक्ति था who served under Moses. जिसने मूसा के अंदर में रह के है सेवा की, He was a leader. और वो अगुवा था। He would follow, he was very closely assisting Moses. और वो मूसा के साथ बहुत ही करीबी से रहने वाला था, साथ चलने वाला था। And so after Moses died, और तो मूसा के मरने के बाद now Joshua was, without a leader. और जोशुआ तो बिना किसी अगुवे के था। And God comes and speaks to him. God speaks to him. और परमेश्वर उससे बात करता है। Right? So first of all, he says, Moses is dead. और तो सबसे पहले वो कहता है कि मूसा मर चुका है। Right? And then he tells Joshua, और फिर वो यहोशू को कहता है you have to be strong. कि तुम्हें जो है हिया भी रहना है, You have to be courageous. और तुम्हें बहुत ही ढाढ़स बांधना है। Right? It's a great responsibility for Joshua. और वो यहोशू के लिए जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। As long as Moses was there, और जब तक मूसा वहां पे था, Joshua could always go to Moses और यहोशू जो हमेशा मूसा के पास जा सकता था and say, there is this problem, there is that problem. और ये कह पाया कि यहाँ पे ये परेशानी, वहाँ ये परेशानी है। And Moses will give the wisdom of God, give the counsel. और मूसा जो है फिर जो यहोशू था उसको परमेश्वर की बुद्धि देता था, समझाता था। Now there was no one like that now लेकिन अब वहां पे कोई नहीं था इस प्रकार का, because Moses had died. क्योंकि मूसा मर चुका था।
So God comes to remind Joshua, और तो परमेश्वर यहोशू को ये याद दिलाने आता है, Moses is dead. मूसा मर चुका है, You cannot change that now. अब उसको जो है तुम बदल नहीं सकते, You have to lead the people. तुम्हें लोगों की अगुवाई करनी है। So you be strong and you be courageous. तो तुम जो है हियाव बांध कर रहो और बहुत ही दृढ़ बनो। And God promises something to Joshua. और परमेश्वर जो यहोशू को यहाँ पे कुछ वायदा करता He है, says, as I was with Moses, और वो कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, so I will be with you. तो मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। Right? So God promises his presence. और तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति का वायदा कर रहा है, As I was with Moses, I will be with you. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। And then he gives a principle. और तब जो है वो सिद्धांत को बताता है। What is that principle? तो वो सिद्धांत क्या है? Let's look at verses 7 onwards. आइए- Joshua chapter 1, verse 7 onwards. यहोशू 1 अध्याय वचन 7 से देखें। Okay. He says, be strong and very courageous. वो कहता है कि तू इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा। And he says, you observe my law and you obey my law. और वो कहता है कि मेरी व्यवस्था को तू उसमें चौकसी कर और उससे ना मुड़ना। What is the end result of it? और तो इसका जो परिणाम क्या He है says, आखिर का? you may prosper wherever you go. और वो कहता है कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा तेरा काम सफल होगा, Okay, you will be successful. तू सफल होगा। And his success was related or linked to the word of God. और वो जो सफलता थी परमेश्वर के वचन से जुड़ी हुई थी। Right? He had to observe the law, he had to do it. उसे जो है परमेश्वर के अव्यवस्था की चौकसी करनी थी और उसे पूरा करना था। Look at verse 8. 8वां वचन देखें। He says, this book of the law shall not depart from your mouth. और कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। Okay, what does that mean? तो उसका मतलब क्या है? You speak the word of God. तो परमेश्वर का वचन बोलो, Okay, don't stop speaking it. बोलना बंद ना करो। Then second thing, फिर दूसरी चीज, he says, you shall meditate in it day and night. और कहता है कि इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना। What is meditating on God's word? और तो परमेश्वर के वचन पे मनन करना क्या है? It is to read God's word. वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, It is to think about God's word. और परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना, It is to even speak God's word softly over to oneself. और परमेश्वर के वचन को बोलना भी अपने ऊपर, Right? Meditating on God's word. परमेश्वर के वचन पे मनन करना। So that's the second thing God says. You meditate in it. और वो दूसरी चीज है जो परमेश्वर कहता है कि दिन रात ध्यान दिए रहना। What is the third thing? तीसरी चीज क्या It है? says you observe to do it, which means you obey the instruction. और वो कहता है कि जो निर्देश दिए गए हैं उनकी आज्ञा मानना, उनको पूरा करना। And then he goes on to say, और फिर वो आगे ये कहता हुआ जाता है if you do this, कि ऐसा करने से you will make your way prosperous. तेरे सब काम सफल होंगे। Yeah? This is what he says. You will have good success. और वो कहता है कि तेरे पास बहुत अच्छी सफलता होगी, But you have to do something. लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना है। You have to make sure that the word of God is in your mouth. और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुख में रहे। You have to make sure that the word of God is in your heart and mind. You have और to meditate in it. इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा वचन दिन रात जो तुम उस पे परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते रहो। And that's not enough. और वो काफी नहीं है। You have to make sure that you obey the instruction of God's word. और तुम्हें इस बात को भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर के जो निर्देश है उनको पूरा करो। Right? So he's saying, he's giving him an instruction, he's giving him a principle for success. और तो वो वहां पे सफलता के लिए जो उसे सिद्धांत बता रहा है। It was not only for Joshua, अब वो केवल यहोशू के लिए ही नहीं थे, but it's also for us. लेकिन वो हमारे लिए भी है, God's word is eternal. क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत है। Right? So this principle is for us, और तो ये सिद्धांत जो हमारे लिए भी है that when we meditate on God's word, कि जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते then when we हैं, declare God's word, जब हम उसके वचन की घोषणा करते and हैं, we obey the truth of God's और जब word, हम परमेश्वर के वचन का सत्य को जो आज्ञा मानते हैं, God promises his success. परमेश्वर उसकी सफलता का वायदा करता है। So success in what area? और तो सफलता किन क्षेत्रों में? Whatever area that you want to apply God's word, जो हर वो क्षेत्र जिसमें आप परमेश्वर के वचन को लागू करना चाहते हैं, be it studies, और चाहे वो पढ़ाई का हो, right? Be it marriage, और चाहे वो वैवाहिक जीवन का हो, be it family, चाहे परिवार में हो, or your personal devotional life, या फिर आपका खुद का व्यक्तिगत भक्ति का or your जीवन, work, or your profession, or ministry, या आपका कार्य सेवकाई, all areas. सारे क्षेत्रों में, Because God's word covers all areas. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हर एक क्षेत्र को उसमें आता है। Right? His principles are there for every area of our lives. उसके जो सिद्धांत है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Does God's word say how we should work? क्या परमेश्वर कहता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए? Yes or no? हाँ या नहीं? You're not sure?
Yes, God's हाँ. word says. परमेश्वर का वचन कहता है. And does God's word give instruction of how we should use money? We've been looking at all that. और Yes. क्या परमेश्वर का वचन हमें ये निर्देश देता है कि कैसे हमें पैसों का धन का इस्तेमाल करना चाहिए? Yeah. Does God's word have instruction on how parents should treat their children? और क्या परमेश्वर के वचन में ये निर्देश होते हैं कि माता पिता कैसे अपने बच्चों को संभालें? Yes. हाँ. God's word also has instruction on how children should relate to parents. और परमेश्वर के वचन में ये भी निर्देश है कि कैसे जो बच्चे हैं उनकी माता पिता को उनको वो बात उनके सामने आने चाहिए. It is there. वो भी है. And how we should conduct ourselves in the house of God. और कैसे हमें परमेश्वर के भवन में जो है खुद का बर्ताव करना चाहिए. God's instruction is there for every area of our lives. परमेश्वर के जो निर्देश है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए हैं. So God's instruction is this, you take the principles and apply it in every area of your life. और तो परमेश्वर के निर्देश ये है कि तुम परमेश्वर का वचन को लो और जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको लागू करो. Many times we want the success. और तो कई बार जो हम सफलता को चाहते हैं, Right? We all want to be successful. हम सब जो है सफल होना चाहते हैं. We want to see change. हम बदलाव को देखना चाहते हैं. I want to see change in my studies. और जो है मेरी पढ़ाई लिखाई में बदलाव को देखना चाहता I हूँ. want to see change in my marriage. और मेरे विवाहित जीवन में बदलाव को देखना I want चाहता to see हूँ. change in my personal life. और मेरे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव को देखना चाहता हूँ. We want to see change. हम बदलाव को देखना चाहते But हैं. God is saying, you take the principles and use it. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि सिद्धांतों को लो और उनको लागू करो. Before you see the change, बदलाव तुम देखो उससे पहले you take the principles and apply it. सिद्धांतों को लेकर उनको इस्तेमाल करो, लागू करो. And that's what God says here. और वही है जो यहाँ पर परमेश्वर So कह let's रहा look है. at some of the principles that he's. तो आइए कुछ यहाँ पर उनके सिद्धांतों को Okay, देखें. one of the things that we see here, now all these principles are related to finances, और right? यहाँ पे जो हम देखते हैं सारे सिद्धांत है वो है धन संपत्ति से जुड़े हुए हैं. And also about success, having success. और सफलता के बारे में भी है. Okay, let's look at Matthew chapter 6. आइए देखिए मत्ती 6 अध्याय. Okay, the words of the Lord Jesus. प्रभु यीशु के वचन. Okay, he says, 6 and verse 33, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. और वो कहता है कि मत्ती 6:33 में इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. So what is the principle there? और तो यहाँ पे सिद्धांत क्या है? Read the verse again. और उस वचन को फिर से पढ़िए. Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6 अध्याय वचन 33. Okay. What does it say? Can somebody read out in Hindi please? तो क्या कोई पढ़ सकते से हिंदी में क्या कहता है वो? Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6 अध्याय वचन 33. Yeah. So what is God asking us to do? तो परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कह रहा है? Okay. What does seek his kingdom mean? और उसके राज्य की खोज करने का मतलब क्या है? Huh? Going after him, then? ये kingdom क्या है? राज्य क्या राज्य है? क्या? What is it? Because God is saying seek the kingdom. और तो परमेश्वर कह रहा है राज्य की खोज करो. So we need to know what is this kingdom तो हमें जानने की जरूरत है कि उसका राज्य है क्या, so that we can go after, seek it. जिससे कि right? हम उसकी खोज कर सकें, उसके पीछे चल सकें. So what is this kingdom? तो ये राज्य है क्या? What is this? Vachan? In our every work we need to give respect to Jesus. Okay, respect and honor God in everything. हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर को आदर और सम्मान देना. But what does kingdom mean? लेकिन राज्य का मतलब क्या है? Sharing the gospel of No. Christ. राज्य का मतलब क्या है? What is the meaning of kingdom? नहीं, kingdom क्या है? राज्य का What मतलब is क्या kingdom? है? Okay, king कौन है? that's right. Okay, you know who a king is, आपको पता है राजा कौन है? right? So what is a kingdom? और तो राज्य क्या है? Kingdom is where the rule and reign of the king. और राज्य वो होता है जहाँ राजा जो है राज्य करता है. Right? Brother, what's your name? आपका नाम क्या है? हाँ?
भानुदास भानुदास Manuras. भानुदास Banu? भानुदास Banudas. हाँ. Let's say Brother Banudas हाँ. is the king of Chhattisgarh. आप वाराणसी से आया? हाँ? Maharashtra. Is the king of Maharashtra. तो आप बोले कि जैसे ब्रदर भानुदास हैं, वो महाराष्ट्र के राजा हैं. Who's the king? राजा कौन है? Banudas. Where is the kingdom? What is the kingdom? और राज्य क्या है? Maharashtra. महाराष्ट्र. ठीक है? Is Karnataka his kingdom? तो क्या कर्नाटका उनका राज्य है? No. Why? क्यों? Because Maharashtra, the boundary of Maharashtra is his kingdom. क्योंकि जो महाराष्ट्र की बाउंड्री वो उनका राज्य है. So now, God is saying, the Lord is saying, seek first the kingdom of God. और तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु कह रहे हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो. His rule and his reign. उसका राज्य, जैसे वो राज करता है उसे. The domain of his king. और जो राजा को जो राज करने का जगह होता है. Saying you seek that first. वो कह रहा है कि पहले उसे खोजो. Right? So when you say seek the kingdom, और तो जब हम कहते हैं राज्य की खोज करो, we are searching or we are pursuing the rule and reign of the king. और तो हम जो है राजा का राज्य करने के लिए मांग रहे हैं और उसे कह रहे हैं. Right? Let me repeat that. When we say seek the kingdom, और जब हम कहते हैं कि राज्य की खोज करो, we are seeking the rule and reign of the king. और जो राजा है उसके राज्य को हम खोज कर रहे हैं कि वो राज करे हमारे. So we are saying, Lord, you rule and reign over me. और तो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर राज करो. You rule and reign over my desires. और परमेश्वर तुम जो है मेरे इच्छाओं के ऊपर राज्य करो. You rule and reign over my life. और मेरे जीवन के ऊपर राज्य करो. You rule and reign over, my work. और मेरे कार्य के ऊपर राज्य करो. Saying, seek first the kingdom of God. तो कह रहा है पहले राज्य की खोज करो. The rule and reign of the king. और परमेश्वर जो राजा होता है उसका शासन और राज्य करना. In a very simple manner, this is what it is. और साधारण शब्दों में यही है. But that is only part of it, right? लेकिन वो उसका एक हिस्सा है. What else is there in that और वो verse? क्या कहता है वचन? And his righteousness. और उसके धर्म. Right? Rule and reign of the king. और परमेश्वर का राजा का राज्य और शासन. And the righteousness of the king. और राजा की धार्मिकता. Seek that उसको खोजो in your life. तुम्हारे जीवन में. So that's a principle, तो वो एक सिद्धांत है. right? In your work, आपके कार्य में, in your conversation, आपकी बातचीत में, in your thoughts, आपके विचारों में, in your imagination, आपकी कल्पनाओं में, in the way you spend or whatever you spend on entertainment, whatever you call as entertainment, और जिस तरीके को भी आप मनोरंजन में जो आपका समय बिताते हो, what you're watching, what you're seeing, what you're hearing, जो भी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, seek the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को खोजें. It's a very practical thing. और ये बहुत ही व्यवहारिक बात है Lord, you rule and reign. कि परमेश्वर तुम राज्य करो, शासन करो. So he's saying, let your whole life be about his rule and reign in your life. और तो वो कह रहा है कि तुम्हारा पूरा जो जीवन है उसका राज्य, उस राजा का राज्य और शासन उसमें होना पाए. If we live such a life, we will actually be seeking the righteousness of और God. यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को खोज रहे होंगे. It's an exciting life. तो ये बहुत ही उत्सुक जीवन है. It's not a boring life, और ये कोई बोरिंग जीवन नहीं है. right? So the Lord is saying, seek first the kingdom. और तो प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले उसके राज्य की खोज करो. Ask for his rule and reign in उसके your relationships. तुम्हारे रिश्तों में जो उसके राज्य और शासन को मांगे. How will you do that? कैसे आप करेंगे? Right? Maybe there is, you're having some misunderstanding. और शायद कोई गलतफहमी हो रही है. Maybe for years you've not spoken to someone. और कि शायद सालों तक जो है आप किसी से बात नहीं करे हैं. Is that person a believer? कि क्या वो व्यक्ति विश्वासी है? Yes. हाँ. Are you a believer? क्या आप विश्वासी हैं? Yes. हाँ. But you had a fight लेकिन आप लोगों का झगड़ा हुआ about something. किसी चीज के बारे में. And many years have passed. और कई सालें बीत चुकी हैं. Now you don't even remember what you fought about. और अब आपको ये याद भी नहीं कि किस बात के लिए झगड़ा हुआ. But you're not on talking terms. लेकिन आप जो है बातचीत नहीं कर रहे हैं. Now when you seek the kingdom of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, you seek the rule and reign of the King of Kings. और जब जो राजाओं का राजा है उसके राज्य और शासन को खोजते हैं, Will his rule and reign change that situation? तो क्या उसका राज्य और शासन जो है उस परिस्थिति को बदलेगा? Yes. Will Jesus allow you to continue like that? क्या यीशु आपको अनुमति देगा वैसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए? नहीं.
He'll ask you to do something else. वो आपको कुछ और करने के लिए बोलेगा Either forgive and release कि या तो उन्हें माफ करो या जाने दो, or reach out and reconcile. और उनके या तो फिर उनके पास पहुंचो और उस रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करो। Yeah. So he'll ask you to do that. अब वो आपसे करने के लिए So बोलेगा। that is what is meant by seeking the kingdom of God. और परमेश्वर का राज्य खोजना, उसका मतलब यही है। Difficult thing. मुश्किल है ना? बहुत ही कठिन बात है, But God wants us to do that लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें, because He wants to be in, or He wants to rule and reign over our lives. क्योंकि वो हमारे जीवन के ऊपर राज्य और शासन करना चाहता है। And He doesn't want you to do it alone और वो नहीं चाहता कि आप इसे अकेले करें, because He's promised His presence. क्योंकि उसने अपनी उपस्थिति को हमसे वायदा किया है। Just like He told Joshua, और जैसे उसने यहोशू को बोला, as I was with Moses, I will be with you. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। So He's promising His presence और तो अपनी उपस्थिति का वो वायदा कर रहा है, and He's placing before us His principles, और उनकी सिद्धांतों को जो हमारे सामने रख रहा है। saying, now you do it. अब वो कह रहा है कि आप इससे करो। So that is what is meant by putting God first in our lives. और यही मतलब होता है कि परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देने का। It doesn't mean, okay, the first thing I do when I get up is read the Bible. इसका मतलब ये नहीं कि जब सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। But what is the second thing? What is the third thing? What is the fourth thing? लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी चीज क्या है? In all that, हर बात में is Jesus still glorified? क्या यीशु फिर भी है जो उसकी महिमा हो रही है? Right? Or through the day, और या क्या पूरे दिन भर के द्वारा, when nobody is watching, जब कोई भी नहीं देख रहा है, nobody is there to tell you, okay, do this or don't do this. और कोई भी नहीं है ये बताने के लिए कि इसे करो या इसे मत When करो, you're not in church, और जब आप कलीसिया में नहीं है, when you're not with believers, और जब आप विश्वासियों के साथ नहीं है, is Jesus still ruling and reigning in your life? तो क्या यीशु तब भी आपके जीवन में राज्य और शासन कर रहा है? That's the question. तो ये प्रश्न है, Right? Because if the Lord rules and reigns in our lives, क्योंकि यदि परमेश्वर जो हमारे जीवन में राज्य और शासन करता है, right? If we invite Him and if we allow Him to rule and reign in our lives, और यदि हम उसे अनुमति दें हमारे जीवन में आने की और राज्य और शासन करने की, if we seek after righteousness, और यदि हम धार्मिकता की खोज में रहें, the Lord promises तो परमेश्वर ये वादा करता है, all the other things will be added. और कि सब वस्तुएं जो है तुम्हें मिल जाएंगी। It's His promise. वो उसका वादा है। But the issue is He ruling and reigning? और लेकिन यहाँ पे परेशानी ये है कि क्या वो हमारे जीवन में राज्य और शासन कर रहा है? What's the next thing? और अगला क्या है? It is to do what God wants us to be doing. यह है वही करना जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। Okay, look at Genesis chapter 39, आइए देखिए उत्पत्ति 39 अध्याय verse 2. दूसरा वचन। Okay, it says, the Lord was with Joseph and he was a successful man. और यहाँ पे कहता है कि यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। Right? So the Lord was with him, तो परमेश्वर उसके साथ था, which means, we know the life of Joseph. तो इसका मतलब वो यूसुफ के जीवन को जानता था, He wanted to please God. और वो जो है परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, He didn't want to disobey God. और वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता And था। God's word says that in whatever he did, he was successful. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी उसने किया उसमें वो सफल रहा। The same chapter, if you look at verse 23, और वही अध्याय यदि हम वचन 23 देखें, we saw this yesterday also. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority. और यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा ने कोई भी वस्तु उसे देखनी ना पड़ती So थी। the Lord was with him, और तो यहोवा उसके साथ था, and he did, and in whatever he did, he was prosperous. और जो कुछ भी उसने किया उसमें वो सफल था। Okay, so that's a very important thing. और तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Are we doing what the Lord wants us to be doing? तो जो परमेश्वर चाहता है हमसे कराना, क्या हम वो कर रहे हैं? Okay, so when we do what God wants us to do, और जब हम करते हैं वो काम जो कि परमेश्वर चाहता है, so one thing we need to understand is what God wants us to do is in line with God's will. तो हमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि जो परमेश्वर चाहता है हम करें, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप में है? Right? And God's will is in line with God's word. और क्या परमेश्वर की जो इच्छा है वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप में है? God's word, God's will, and God's ways, these are all the same.
परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के रास्ते, ये सारे एक समान हैं। Many times we ask this question, Lord, what is your will? What is your will? कई बार हम ये प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, What does God's word say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, That's his will. वही उसकी इच्छा है। And that's the way we are supposed to live. और उसी तरीके से है जो हम जीना हमें Okay? चाहिए। So when we do what God wants us to be doing in a situation, और जब जब हम वो करते हैं जो कि परमेश्वर चाहता है हमसे कराना एक परिस्थिति में, maybe some of these situations are difficult circumstances. और शायद कुछ जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियां होंगी, And sometimes it's very inconvenient, और कई बार जो बहुत ही असुविधाजनक होता है challenging, और बहुत ही चुनौतियों से भरा, difficult. कठिन। Right? Maybe you did not do anything wrong, और शायद आपने कुछ गलत नहीं किया but the other person did everything wrong. और दूसरे व्यक्ति ने सब कुछ गलत किया, What will you do in that situation? तो आप उस परिस्थिति के साथ क्या करेंगे? We need to find out the will of God, तब हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत because है, that's the way of God. क्योंकि वही जो है परमेश्वर का मार्ग है, रास्ता Now, है। this is a general principle that we need to apply. और ये जो है एक आम सिद्धांत है जिसको हमें लागू करने की जरूरत है। Okay, so when we do that, then we will be successful. और तो जब हम वो करेंगे तब सफल होंगे। Third thing that we see तीसरा हम देखते हैं, is that we are called to practice righteousness. हम जो है धार्मिकता का पालन करने के लिए बुलाए गए हैं, Do the right thing. और जो सही चीज है उसे So करें। how do we know what is the right thing तो to do? कैसे हम जाने की सही चीज करना क्या है? The righteous one is Jesus. और जो धर्मी है वो यीशु है। The Holy Spirit, he is the one who is a spirit of revelation. He's a spirit of truth. और जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। So which means he is going to lead us in doing what is right, doing the truth. तो इसका मतलब वो हमें उसमें अगुवाई करने के लिए चलाने वाला है जो कि सत्य है और उसकी इच्छा के अनुसार। So we are called to practice righteousness. तो हम जो धार्मिकता का पालन करने के लिए बुलाए गए हैं, Okay, so when we practice righteousness, और जब हम धार्मिकता का पालन करते हैं, then the result is what God gives us. और तो जो परिणाम है वो परमेश्वर देता है। Right? Whether it's success, whether it's growth, it comes from God. चाहे सफलता है या बढ़ोतरी है, वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। Now it might be difficult. अब हो सकता है वो बहुत ही कठिन हो, It's challenging चुनौतियों से भरा हो, when everybody is doing the wrong thing. जब जहाँ पे हर कोई जो है गलत चीजें कर रहा हो, Right? Because we look around क्योंकि हम आसपास देखते हैं and everyone seems to be doing the wrong thing और हर कोई जो गलत चीजें करते हुए दिखाई देता है, and they seem to be having a great life. और उनका जीवन है बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। Sometimes you think, why should I do things differently? और तो कई बार हम सोचते क्यों मुझे चीजों को अलग तरीके से करना चाहिए, And they are telling you, why are you doing like this? और वो आपसे कहते हैं क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, Look at our lives. हमारे जीवनों को देखें, You be like us. अ, You be like us. और वो हमारी तरह हो, Nothing wrong. कुछ भी गलत नहीं And है। sometimes even Christian friends tell us, और कई बार जो है मसीह लोग भी ऐसा करते हैं, why do you want to do the right thing all the time? क्यों जो है आप हर समय सही चीजों को करना चाहते हैं। It's okay. ये ठीक है, कोई बात नहीं, It's okay to compromise. समझौता करना ठीक है, But God's word is very clear. लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा स्पष्ट है। Like if you look at Psalm 92 and verse 12, और यदि हम देखें भजन संहिता it says, 92, the righteous shall flourish like a palm tree. और भजन संहिता 92:12 कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। See, one thing about palm tree, right? और खजूर के जो पेड़ होते हैं उनके बारे में एक बात, It grows even in dry places. और वो जो सूखे स्थानों पर भी जो है बढ़ जाता है। Right? You've noticed, right? आप उसे देखें, The palm tree, it grows in very dry places. और जो खजूर का पेड़ होता है बहुत ही सूखे स्थानों पे वो बढ़ते हैं। It says here, the righteous shall flourish. और वो कहते हैं कि धर्मी है जो फूले फलेंगे। Right? Flourish meaning they will thrive. फूलना फलना मतलब वो बढ़ेंगे। The environment could be dry. और जो वातावरण होता है वो हो सकता है कि सूखा हो, The circumstance could be difficult. परिस्थितियां हो सकती है मुश्किल हो, But the righteous will flourish. लेकिन जो धर्मी है वो फूले फलेंगे। We saw that example in Joseph. और हमने वो यूसुफ के जीवन में उदाहरण देखा। What was the situation? उसकी परिस्थिति क्या थी? A prison. वो जेल में था, No comfort. कोई भी वहां पे आराम नहीं है, No sofa to sit and relax. और सोफा नहीं वहां बैठने के लिए, आराम करने के लिए, No air conditioning. वहां पे एसी नहीं है। Difficult situation. बहुत ही कठिन परिस्थिति। But did he thrive and flourish? Was he लेक- successful? लेकिन क्या वो फूला फला था? क्या वो वो सफल हुआ? Yes. हाँ। So God's word is true. और तो परमेश्वर का वचन सत्य है। The righteous shall flourish like a palm tree. और जो धर्मी है, धर्मी लोग जो खजूर के समान फूले फलेंगे। And it says that he shall grow like a cedar
in Lebanon. और वो कहता है कि और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। Okay, so that's a promise from God's और word. तो ये परमेश्वर के वचन से उसका वायदा है। Okay, so we looked at a few principles till now. तो हमने कुछ सिद्धांतों को देखा अब Okay, तक। let's look at a few more. आइए कुछ और को देखें। Now, we are looking at a very important one right now. और अब जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण देखेंगे, Right, the next one. This is called work. और ये कहलाया गया है कार्य, Right, diligent work. और जो है लगन से कार्य करना। Okay, now, how is the quality of your work? और आपका जो कार्य है उसके गुण क्या है? Right? What is the quality of your work? आपके कार्य के गुण क्या है? Okay, how many of you have worked before? आप में से कितने लोगों ने पहले काम किया हुआ है? Okay, okay, fine. Where have you worked? आपने कहाँ काम किया हुआ है? Huh? In a cafe or who else? So what did you do in a cafe? Baking. Tea. Okay, then ministry. Okay, what kind of ministry? Well, किस प्रकार की सेवकाई? what is this? सॉरी, क्या? Church, yeah, outreach. Church ministry. चर्च में। Okay. Anyone else? और Who कोई? else? Yeah, sister, you? In a hospital, as what? As a physiotherapist. Okay. Who else? और बनारस में क्या काम किया आप? क्या किया? हाउसकीपिंग। Housekeeping. Okay. Then, as a software engineer. Okay. Sorry. बैकिंग। Back end. Okay, back end, like a BPO. Okay, fine. So different kinds of work. तो अलग अलग प्रकार के कार्य। And so, what is the quality of work? और तो आपका जो कार्य है उसकी जो गुण है, उसकी जो अच्छाई है वो क्या है? Or what is the quality of the effort put in? और जो उसमें मेहनत डाली गई है उसकी अच्छाई, उसके गुण क्या There's है? a principle here, और वो यहाँ, क्योंकि वहाँ पे सिद्धांत है। right? So, diligent work is what is expected. और तो लगन से काम करने के लिए जो है यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। Diligence means focus. और लगन लगाने का मतलब है ध्यान से करना। It means effort, good effort. इसका मतलब अच्छी मेहनत उसमें Right. देना। It means hard work. इसका मतलब कठिन परिश्रम। It also means smart work. और इसका मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना भी। See, there are two ways you can work. और दो तरीके हैं जैसे आप काम कर सकते Okay, हैं। maybe you need to sweep the place, और हो सकता है कि जगह पे से झाड़ू लगाने की जरूरत है, right? You take the broom और आप झाड़ू लेते हैं and you just go around doing it. और उसे करते हुए जाते हैं। Okay? So they ask you, have you swept the place? और तो फिर हम आप पूछेंगे कि आपने झाड़ू लगाया है जगह पे? Yeah, yes, I did. आप बोलेंगे हाँ हमने किया How है। long did you spend? तो कितना समय उसमें खर्च किया है? Almost 15 minutes. कि कम से कम 15 मिनट। Okay? But is there dirt still there? तो क्या वहां पे गंदगी फिर भी है? Maybe. हो सकता है। Right? But you asked me to sweep, I swept. लेकिन आपने हमें झाड़ू लगाने के लिए बोला, हमने कर दिया। But is the cobweb still there? Cobwebs, spider क्या web? वहां पे जाला अभी भी है? Maybe. हो सकता है शायद। But I swept. लेकिन हमने झाड़ू लगा दिया। 15 minutes I swept. 15 मिनट तक जो झाड़ू लगाया। So that is one kind of work. तो वो एक प्रकार का कार्य है। The other kind of work is when you do a good job, thorough job. और दूसरे प्रकार का जो कार्य है जब आप पूरी तरीके से अच्छे से उसे काम करें, Right? And there's no visible dirt around. और उसमें दिखती हुई कोई गंदगी नहीं दिखती आसपास में। What is the difference? उसमें अंतर क्या है? The difference is the effort put in. और उसमें जो अंतर है जो कि उसमें मेहनत लगाई गई है वो। In one area there is diligence, and in the other effort there is no diligence. और एक क्षेत्र जहाँ पे लगन से काम किया गया, दूसरे क्षेत्र जहाँ पे लगन नहीं है। So even before that, और तो उससे पहले we need to look at how God sees work. और हमें ये देखने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसे काम को देखता है। Like many times we think this work, if Adam had not fallen, there won't be any need for work. और तो कई बार हम सोचते हैं कि यदि आदम जो है उसने पाप नहीं किया होता तो काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। See, Adam was relaxing in the garden. और आदम जो है बगीचे में आराम कर रहा था। Everything was provided for. और सब कुछ जो उसके लिए प्रबंध कराया गया। The fruits were there and everything was provided for. All needs were taken care of. फल वहां पे थे और सब कुछ उसकी सारी जरूरतों को वहां पे देखा गया था। Why did Adam and Eve, why did they sin?
क्यों आदम और हवा ने पाप किया, Right? Because of that, now we are suffering. और उनके कारण ही ये जो अब हमें संघर्ष करना पड़ रहा We है, have to work now. हमें काम करना पड़ता है अब। Sometimes we think like that. तो कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं। Right? How many of you think that work is a blessing or a curse? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि जो काम है वो आशीष है या श्राप है? How many of you saying work is a curse? आप में से कितने लोग कहते हैं काम श्राप है? कोई नहीं? It's a curse. ठीक है. Or how many of you saying work is a blessing? आप में से कितने लोग कहते हैं कार्य आशीष है? Okay, some people have not put. Okay, if you're saying work is a blessing, you should tell me why. If you're saying work is a curse, you should tell me why. और यदि आप कह रहे हैं कि कार्य आशीष है तो आपको कारण बताना चाहिए क्यों, और यदि कह रहे हैं कि काम श्राप है तो उसका कारण बताना है क्यों। ठीक है. We'll ask. Okay, why is work? You can use the mic. Yeah. वहां से Genesis, God says, okay, I will curse the land and etc. Okay, ठीक है. So that's why work is curse. Anyone else? और Who said कोई work is a blessing? काम आशीष है, कौन बताना चाहता है क्यों आशीष Yeah, है? sister. हाँ. So she works in the medical line, so it's good for her. Like when the patients come, she's able to take care for them, help them. In this way, it's a blessing. Oh, I see. So because you see somebody is benefited, so you feel that somebody is a blessing. तो क्योंकि आपको लगता है कि किसी को आशीष मिल रही है, किसी का लाभ हुआ है, तो आपको वो आशीषित लगता है काम। Okay. So let's look at the garden. Right? तो गार्डन, The Garden of Eden. आइए उस अदन के बाग को देखें। Everything was good. जो उसमें था सब कुछ अच्छा It was था, perfect. वो पूरा सिद्ध था। Right? But God says something to Adam. लेकिन परमेश्वर ने जो आदम से कुछ कहा, In Genesis chapter 2, और उत्पत्ति 2 अध्याय में verse 15. 15 वचन। Okay, you look at Genesis chapter 2 and verse 15. तो आइए देखिए उत्पत्ति 2 अध्याय 15 वचन। And you tell me whether this was before the fall or after the fall. और आप हमें ये बताइए कि जो जब पाप कर दिया था आदम हवा ने, वो गिराए गए उसके बाद का या उससे पहले का है? पहले था, right? It's before the fall. और ये है उनके गिरने से पहले का है। Okay, so what does God do there? और तो यहाँ पे क्या कह रहा है It परमेश्वर? says here, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Okay, this is before the fall. और ये जो है वो पाप किया गिराएगा उसके पहले का है। So God is telling Adam to do something. और तो परमेश्वर आदम को कुछ करने के लिए कह रहा है। Adam, you take care of the garden. ओके, आदम तुम जो है इस बगीचे की देखभाल करो। Right? In the English, there are two words that are used there, to tend and to keep. और इसके यहाँ पर शब्द ये बताए हैं, काम करना और उसकी रक्षा करना। Right? So which means you work, इसका मतलब तुम्हें काम करना है, you also guard, you protect. और उसकी सुरक्षा भी करना है, रक्षा करनी है, You serve, सेवा करनी है, and you also attend to what needs to be done. और जो वहां पे करने की जरूरत है वो भी करना है। This was before the fall. ये उनके घिराए जाने से पहले है। So who started it? तो किसने ये शुरू किया? God started it. परमेश्वर ने। Right? He instituted work. उसने काम को शुरू किया। And so something else happened और तो कुछ और हुआ यहाँ पे, because of the fall. वो Right. गिरे उसके कारण। Because of the fall, we see that the effort of man, was not actually giving the result that was required. और जो वहाँ पे पतन हुआ उसके कारण जो है, जो लोग अपने काम कर रहे थे मेहनत, वो सही परिणाम को नहीं ला रहा था जो होना चाहिए। We see that the land was cursed. The land और was हम cursed, देखते हैं right? कि जो भूमि थी उसको श्राप दिया गया। We see that in chapter 3, verse 18. हम उसे 3 अध्याय 18 वचन में देखते हैं। Right? Both thorns and thistles the land shall bring forth. कि और वहाँ पे जो है कांटे और ऊंट कटारे उगे थे। Verse 19 says, in the sweat of your face you shall eat bread. और 19 वचन में कहता है कि अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। With the fall of man came a lot of negative things. और जो मनुष्य का पतन हुआ उसके साथ जो बहुत सारी नकारात्मक चीजें साथ में आई। And one of the things was that because of the result the effort put in, the result was not proportional to the effort. और उनमें से एक चीज ये थी कि जो वहां पे वो अपनी मेहनत उसमें दे रहे थे, जो परिणाम आना चाहिए था उसका वो नहीं आ रहा था। But work itself was designed by God. लेकिन कार्य जो है परमेश्वर के द्वारा उसकी रचना की गई। And so since God designed it, it's good. अब तो क्योंकि परमेश्वर ने उसकी रचना की तो वो अच्छा है। So whatever work, all the work that you said, तो जो it's भी good. कार्य हो जो आपने बोले वो अच्छे हैं।
And so we need to approach it in that same way. और तो हमें भी उसको सही तरीके से जो है देखने की जरूरत है, This work is designed by God क्योंकि ये कार्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया and I है, need to put my best effort. और अब जो है उसमें मुझे मेरा सबसे अच्छा मेहनत उसमें लाने की जरूरत है। Right? Okay. We'll take a break and then we'll come back. ब्रेक लेके वापस आएंगे।